اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد رسالت مآب ہو رہا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے گزر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاہلیت کی موت یعنی یہودی یا نصرانی موت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ یا یہودی بن کے مرتا ہے یا عیسائی بن کر مرتا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مرتا۔ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، امام صاحب اختیار ہوتے ہیں، امام واجب الطاعہ ہوتے ہیں، جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے وہ امام ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بہت الگ عنوان سے، بہت الگ نہج سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ایام عزا ہے، یہ ایام مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہر شے میں جو حیات ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ ہر شے میں رمق جو ہے وہ پانی کی وجہ سے، ہر شے میں جو دمک پائی جاتی ہے وہ پانی کی وجہ سے۔ یہ پیڑ پودے، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ سارے مخلوقات جتنے بھی زندہ ہیں یہ سب کے سب پانی کی وجہ سے۔ اگر پانی کو دنیا سے ہٹا لیا جائے تو ساری دنیا ویران ہو جائے گی، ساری دنیا برباد ہو جائے گی، حیات کا تصور ختم ہو جائے گا اور موت کی حکومت پوری دنیا پر عام ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، ہر شے کو اللہ نے پانی کی وجہ سے زندگی عنایت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں، ہر شے جتنی بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب اشیاء پانی کی وجہ سے خلق ہوئے۔ کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسی پانی سے پتھر اللہ نے بنائے اور ان پتھروں میں جیسی جیسی چمک آتی رہی اس کو ویسے ویسے الگ الگ عنوان سے نام دیے گئے اور اس کی قیمت بھی الگ الگ لگائی گئی۔ یہی پانی کے قطرے جب پتھروں میں بدلتے ہیں اور اس پر جب دن کی تپش پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے تو اس میں الگ الگ طریقے کے ذوق پائے جاتے ہیں، الگ الگ طریقے کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی لال بن کر چمکتا ہے، کوئی ہرا بن کر چمکتا ہے، کوئی زرد بن کر چمکتا ہے، کوئی سفید بن کر چمکتا ہے، اور دنیا والے اسے الگ الگ نام سے پہچانتے ہیں۔ جو لال ہوتا ہے اسے یاقوت کہتے ہیں، جو زرد ہوتا ہے اسے عقیق زرد کہتے ہیں، جو سرخ ہوتا ہے اسے عقیق کہتے ہیں اور یاقوت کہتے ہیں، اور جو سفید ہوتا ہے اسے الماس کہتے ہیں اور در نجف کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی پانی کے قطرے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد الگ الگ پتھروں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے الگ الگ پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی فیروزہ بنتا ہے، کوئی یاقوت بنتا ہے، کوئی زمرد بنتا ہے، کوئی نیلم بنتا ہے، کوئی الماس بنتا ہے۔ عزیزان محترم، سب پتھر کی اپنی الگ چمک ہوتی ہے، اپنی الگ پہچان ہوتی ہے، اور صاحبان ادراک اور صاحبان فہم سمجھتے ہیں کہ کون سا پتھر قیمتی ہے اور کون سا پتھر قیمتی
कीमती नहीं है। अजीजान मोहतरम, जब हमने माहिरीन से पूछा सबसे कीमती पत्थर कौन सा है, तो माहिरीन ने कहा सबसे कीमती जो पत्थर है वो अल्मास है, वो हीरा है, उसे कोहे नूर कहते हैं। हमने पूछा ये कोहे नूर बनता कहां से है, ये हीरा कहां से बनता है, तो लोगों ने कहा यह हीरा दफीने में बनता है। दफीने में जब लकड़ी की कान कोयले में बदल जाती है तो उस कोयले में करोड़ों सालों तक ये कोयले की शक्ल में रहता है, और जब उसमें गर्मी आ जाती है, जिसमें तपिश आ जाती है, और उसके बाद जब वो तपिश को, तमाजत को झेलता हुआ, जब वो बर्दाश्त करता हुआ एक लम्हे के करीब पहुंच जाता है, जिस लम्हे में वो सर बुलंद होता है, कोयले की कान से हीरा बनकर उभरता है। जबकि अजीजान मोहतरम, आप देख लें कोयले में और हीरे में कोई मुमासलत नहीं पाई जाती, बिल्कुल ये एक दूसरे के जिद होते हैं। वो बिल्कुल सियाह होता है और ये बिल्कुल सफेद होता है, उसमें ना कोई चमक होती है ना रमक होती है। इसमें चमक भी पाई जाती है और रमक भी पाई जाती है, और कोयले की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हीरे की कीमत आसमान छूने लगती है। हमने पूछा ये कोयले की कान से ये हीरा कैसे बना, तो लोगों ने बताया सबसे पहले ये दरख्त था, दरख्त मिट्टी से निकला, मिट्टी पानी से बना, तो अजीजान मिट्टी पानी से बनी, और यहीं से ये सिलसिला चलता हुआ ये हीरे तक पहुंचा। और ये हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है कि बादशाह अपने सरों का ताज बनाना चाहते हैं। तो अजीजान मोहतरम, अब मुझे समझ में आ गया, पानी का एक कतरा जब आगे मंजिलों को तय करता है तो उसमें जैसी जैसी चमक आती है उसकी कीमतों में इजाफा होता चला जाता है। याकूत की कीमत अलग है, फेरोजे की कीमत अलग है, सबसे जो कीमती पत्थर है वो अल्मास है और हीरा है। अजीजान मोहतरम, यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात को सलाम कीजिए, इमाम हुसैन की शान को सलाम कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलग तरीके से मैं मौजज़ात बताना चाहता हूं। अजीजान मोहतरम, पानी को हीरे में बदलने के लिए करोड़ों साल का वक्त लग गया, करोड़ों साल का वक्त लग गया, लेकिन अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन की अजमत देखिए। जब तक हुर फौजे बातिल में था, हुर जब तक फौजे यजीदी में था, उसकी मिसाल कोयले जैसी थी। लेकिन अजीजान मोहतरम, जैसे ही उसने इमाम हुसैन के बारे में सोचना शुरू कर दिया और हुसैनियत की तरफ कदम को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक एक कदम को आगे बढ़ाता गया, तो कभी फेरोजा बन गया, कभी याकूत बन गया, कभी जमरुद बन गया, कभी नीलम बन गया। और जब इमाम हुसैन के कदमों पे जाके गिर गया और इमाम हुसैन ने उसके ऊपर एक निगाहे करम को डाला, तो वो हीरे में तब्दील हो गया। अजीजान मोहतरम, पानी वो है कि जिसके कतरे हजारों और करोड़ों सालों तक एक जगह पर महदूद होकर रह जाते हैं। जब उस पर तमाज़त आफताब मुसलसल गिरती रहती है, तब जाके वो पानी का कतरा हीरे में बदलता है। लेकिन इमाम हुसैन का मौजज़ा यह है कि इमाम ने बस एक निगाहे करम डाला, बस वो हुर हीरे में तब्दील हो गया और उसकी कीमत आसमान छूने लगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। लोग ये कहते हैं अजीजान मोहतरम, कंकर को और पत्थर को जनाब ईसा ने भी दूर से बदला था। मैं इसके वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारा करके जरूर आगे बढ़ना चाहता हूं। जनाब ईसा बहुत बड़े नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर है, साहिब किताब, साहिब कलमा, साहिब शरीयत नबी हैं। उनका हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने पत्थर से दूर को बनाया। लेकिन मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूं, ऐसे इमाम को जानता हूं, ऐसे अल्लाह की मखलूक को जानता हूं कि जो पानी के कतरों से हीरे और जवाहिर बना सकता है। अजीजान मोहतरम, ये कोई और नहीं है, ये इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है कि जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, एक बार एक गरीब ने इमाम को दावत दी, इमाम ने कबूल कर ली, इमाम उसके मेहमान बन गए। जैसे ही मेहमान नवाजी उसने की, मौला ने उसके दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना शुरू किया और उसके बाद उसके हालात पर जायजा किया, तो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसकी गुर्बत का अंदाजा हुआ। खाने से फारिग होने के बाद इमाम ने कहा,
एक तश्त लेकर आओ, मैं अपना हाथ उसमें धोना चाहता हूं। अजीजान मोहतरम, तश्त लाया गया, इमाम उसमें हाथ धो रहे थे। एक मर्तबा वो जो मेहमान नवाजी कर रहा था, जो मेजबान था, वो इमाम के चेहरे की तरफ देख रहा था। एक बार इमाम ने कहा, मेरे चेहरे को ना देखो बल्कि तुम्हारे तश्त के अंदर देखो। जैसे ही उसने तश्त के अंदर देखा तो उसमें हीरे थे। वो बहुत चौंक के और परेशान होकर सवाल किया, मौला आपके हाथों का धोवन हीरे में बदल गया है। तो इमाम ने कहा, यह तश्त हटा के दूसरा तश्त लेकर आओ। फिर मौला के सामने दूसरा तश्त लाया गया। फिर मौला ने हाथ धोना शुरू कर दिया। पानी के कतरे आपके हाथ से मस होकर जो जमीन पर गिर रहे थे वो मोती हो गए थे, जमर्रुद बन गए थे, अकीक बन गए थे। अजीजान मोहतरम, ऐसे ही 2-3 तश्त मंगवाए इमाम ने, और हर तश्त में अलग अलग जवाहिरात को बना के इमाम ने उसके हवाले कर दिया। और उसके बाद दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि देखो जनाब ईसा वो हैं जो कंकर से हीरे और जवाहिरात बना सकते हैं, लेकिन मैं इमाम हुसैन का बेटा हूं, मैं हाथ के धोवन से हीरों को बना सकता हूं, जवाहिरात को बना सकता हूं, मोती को बना सकता हूं, मूंगों को बना सकता हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ के धोवन से हीरे और जवाहिरात बनाए, क्योंकि ये उन्हीं के पोते हैं कि जिनकी दादी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम अज़ादारों के आंसुओं को अपने रूमाल में महफूज करती हैं, और क़यामत के दिन हमारे आंसुओं को, अज़ादारों के आंसुओं को, हुसैनियों के आंसुओं को ऐसे कीमती हीरों में तब्दील करेंगी कि जिसकी कीमत अंबिया भी नहीं लगा सकते। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आपके अश्क अज़ा कीमती दुर हो जाएंगे, कीमती हीरों में तब्दील हो जाएंगे। उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आदम से लेकर खातम तक कोई भी उसका हिसाब नहीं लगा पाएगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अय्याम अज़ा है, ये रोने के दिन है, ये मुसीबतों के दिन है, लिहाजा दिल चाहता है कि आज ऐसे शख्सियत का तज़किरा करूं कि जो सूरत और सीरत में, रफ्तार में और गुफ्तार में सबसे ज्यादा रसूल अकरम से मुशाबहत रखता था। ये कोई और नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, ये जनाब अली अकबर हैं कि जिसको बड़े एहतराम से इमाम हुसैन ने पाला, जिसकी नाज बरदारियां जनाब ज़ैनब ने उठाई। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज उसी की शहादत की तारीख है। जब अली अकबर इमाम हुसैन के करीब आकर मरने की इजाजत मांग रहे थे तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, क्या मेरे लाल, तुम जैसे जवान बेटे भी मरने की इजाजत मांगते हैं? बस इतना कहना था। अली अकबर ने सर को झुका लिया और कहा, बाबा जान, जब सारे मर गए मैं जिंदा रह के क्या करूं? दिल चाहता है कि मैं भी आप पर कुर्बान हो जाऊं। बस इतना कहना था। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, बेटा अकबर जाओ, अपनी मां और फूफी से इजाजत लेकर आओ। ये गए, मां और फूफी से इजाजत लेकर जब वापस आ रहे थे, तारीख बताती है, रावी ये बताता है कि मक्तल में ऐसा शहीद कभी नहीं देखा गया कि जिसको इजाजत देने के लिए बीबियां छोड़ती हैं और वापस खैमों में वापस बुला लेती हैं। पर्दा कभी उठता था, पर्दा कभी गिर जाता था, पर्दा कभी उठता था, पर्दा कभी गिर जाता था। ऐसा एहसास हो रहा था कि भरे घर से किसी जवान की मैयत निकल रही हो।
ہاں आज़ादारों, जब अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए, इमाम हुसैन ने घोड़े पर सवार कराया और उसके बाद कहा, बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ कर जरूर देखना। जब तक सामना रहा, इमाम हुसैन को जनाब अली अकबर मुड़कर देखते रहे। लेकिन हाँ आज़ादारों, जब वक्त करीब आया, जब वो मक्तल के करीब पहुंचे तो घोड़े की रफ्तार को बढ़ाना चाहते थे। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा। तेजी से बढ़ता हुआ जब दौड़ने लगा तो एक मर्तबा घोड़े के सामने एक काले बुर्के वाली बीबी हाथों को फैला के कह रही थी, ऐ मेरे लाल अकबर, अपने रहबार को रोक ले, पीछे तेरा बाबा ज़ईफ जमीन पर गिर गया है। जैसे ही ये कहा, अली अकबर ने घोड़े को रोका, इमाम के करीब गए, बात को सीने से लगाया और कहा, बाबा जान, आपने तो मुझे मरने की इजाजत दे दी थी, अब मुझे पीछे आने का क्या मतलब है। बस इमाम हुसैन ने अकबर की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे लाल, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि एक ज़ईफ बाप के दिल में बेटे की कितनी ज्यादा मोहब्बत होती है। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। अली अकबर मैदान कारजार में आए। तारीख बताती है कि प्यासा जवान 120 से ज्यादा मुशरिकीन और काफिरीन को फिन्नार करते हुए आगे रहबार को बढ़ाता रहा। जबान पर कांटे पड़ गए थे। एक मर्तबा हुसैन के खेमे में अली अकबर पहुंचे और कहने लगे, या अबताहु अल अतश कद कतलनी, ऐ बाबा जान, प्यास मुझे मारे डाल रही है। बस जैसे ही ये कहना था, हुसैन ने कहा, मेरे लाल, तुम अपनी जबान को मेरे दहन में दे दो। जैसे ही दहन में जबान को रखी, वापस खींच लिया और कहा, बाबा जान, आपकी जबान पर तो मुझसे भी ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। बस इतना कहना था। हुसैन ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारे दादा हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर गए। अरे जालिमों ने चारों तरफ से हमले किए। अरे कोई जालिम ने आपके सीने पे ऐसी बर्छी मारी कि आपसे रहा नहीं गया। जमीन पर आते आते कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, आप पर सलाम आखिर है। बस इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सलाम को सुना, मक्तल की तरफ दौड़ने लगे और उसके बाद मरसिया भी पढ़ने लगे। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, तेरे मरने ने मेरी आंखों की बीनाई छीन ली। अरे एक मर्तबा इमाम हुसैन लाशे अकबर पे पहुंचे, बर्छी की अनी को देखा, एक मर्तबा निकालना चाहा। अरे बर्छी की अनी थी, जवान का कलेजा था। अरे ज़ईफ के हाथ थे। अरे जमीन को जलजला आने लगा। एक बार बर्छी की अनी को जैसे ही निकाला, बर्छी की अनी के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। अली अकबर के कलेजे के साथ खून का फव्वारा जारी हो गया। अली अकबर के लाशे को सीने से लगाया और उठाते थे और जमीन पर रख देते थे और कहते जाते थे, ऐ बनी असद के बेटो, आओ जवान का लाशा ज़ईफ बाप से उठाया नहीं जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़्म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह।